ویلکم بیک. جی جناب علی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ روبرو ہوا جائے جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. یقیناً ہمارے پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں علماء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, ایکسپرٹ سے ہوتی ہے, لیکن آج ایک ایسی سماجی شخصیت کو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ جن سے آپ بخوبی واقف تو ہیں. اینڈ یقیناً وہ بہت سارے, شی ویئرز اے نمبر آف ہیٹس. ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں, پالیٹکس میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. یعنی لیڈرشپ کی تمام کوالٹیز ہم ان میں دیکھتے ہیں. اور یقیناً جاننا چاہیں گے کہ آج کی صورتحال اور خصوصاً سال 2020 کے بعد جو ہماری زندگیاں بدلی ہیں اس پہ ان کا کیا تجزیہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آور ویری اون, آور ویری فیوریٹ خوشبخت شجاعت صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے خوشبخت آپا. کیسی ہیں سدرا؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی, سب کو مبارکباد. ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے, ہمارا اسکیڈول نہیں مل پاتا تھا. مارننگ شو میں بھی آپ کو ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں, لیکن بہت شکریہ کہ وقت نکالا. خوشبخت آپا, صورتحال بڑی عجیب سی ہے, سچویشن ہمارے سامنے. اس میں سماجی رویے کا بھی ایک اینگل ہے, سیاسی عنصر بھی ہے. ہم اپنے معاشرے کو کس طرح دیکھتے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری ریاست سے, سب چیزیں ایک جگہ ہو گئی ہیں. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے, ایک تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اس میں کووڈ نمبر 1 ہے جس نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, پوری دنیا کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایسی بیماری یا ایک ایسی تکلیف ہے جس میں پوری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس دکھ میں مبتلا ہے. لیکن جو ہمارے سماجی رویے ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ تکلیف دے رہے ہیں اس سلسلے میں. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ماسک کی بات کی تھی. آپ یقین کریں سدرا, میں ابھی بھی آ رہی تھی, سڑکوں پر راہگیر ہیں, ٹھیلے والے ہیں, دکان والے ہیں, کوئی موسٹلی لوگ نہیں پہنے ہوئے ماسک. اب ماسک نہ پہننا, مجھے یہ اس کا جواز اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے, لوگ سمجھا رہے ہیں, آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں, دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا سماجی رویہ ہے جس میں بات کو نہ ماننا اور نگلیکٹ کرنا, نظر انداز کرنا, اس چیز نے بھی ہمیں بہت تکلیف. یعنی ہم قوانین کو, رولز کو ہم سمجھتے ہیں کہ سجیشنز ہیں, ان کو ماننا نہ ماننا ہمارے اپنے اوپر ہے. سدرا, رول اور قوانین بہت بڑی بات ہے. میں تو کہہ رہی ہوں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے ڈیلی دنیا کے رویے کا کہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور دوسرے کو بھی محفوظ کریں. اس میں کون سے اتنے بڑے بڑے قانون یا رولز آپ کو لاگو رکھنا ہے, لیکن اس سے بھی ہم اگر اپنے آپ کو دور کریں گے. ماسک نہ پہننا یہ ایک ایسا عمل ہے آج کی دنیا میں جس سے آپ ایک بہت بڑے عذاب و تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اور ماسک پہن لینے سے آپ کی بہت کچھ بچت ہو سکتی ہے. تو پہلے بچت کیوں نہ کر لی جائے. حالانکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور, اور ایک بڑا ہی سمپل چیز ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے کوئی ہاتھی گھوڑے لگانے, لیکن بہرحال جی آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں لوگ بیسک سے بیسک چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک عدم برداشت ہے, اس کے علاوہ کنٹرول, یعنی اپنے خیالات پہ, اپنے نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز پہ, اپنے ایگو پہ, اپنے نفس پہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے. ہمیں گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں, کئی دفعہ آپ ان کو میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علی لکھانی. السلام علیکم علی, رمضان مبارک ٹو یو. تھینک یو, آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. کیا حال ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم جاگنگ کرتے کرتے کہیں سے بھاگتے دوڑتے آ بس گئے. صبح سے ایکچولی 2-3 کمٹمنٹس تھی تو وہ کر کے پھر میں داری کہیں آ گیا. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ بلکہ 1 منٹ تم سے گفتگو کرنے سے پہلے واپس چلتے ذرا کچن کی طرف. کچن میں کچھ کھڑپڑ مجھے سنائی دے رہی ہے. سلما جی کیا تلا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے املی کی چٹنی بنائی جا رہی ہے. اچھا. جس میں ہم نے سارے گرم مسالے ڈال کے پہلے بھون لیا فرائی پین کے اندر, اور اب املی کو اس میں پانی کے ساتھ ڈال دیا. یہ جب بالکل بوائل ہو جائے گی, اچھی طرح یکجان ہو جائیں گے, تو پھر ہم اسے اسٹرین کر لیں گے. یہ بڑی مزیدار, اینڈ میں ہم ہلکی سی سونچ ڈالیں. اچھا, وہ جو بیچاری سزا دی ہوئی تھی ہماری مرچوں کو جو ڈوبی ہوئی تھی, وہ آپ نے مجھے بتایا پانی میں نہیں تھی. نہیں, وہ سرکے کے ساتھ. اصل میں لوگ پیری بائٹس بناتے ہیں لیکن اسے پکل نہیں کرتے. ہاں. اچھا, پکل کرنے کے لیے یہ ہے کہ آدھی پیالی اگر ہم نے سرکہ ڈالا ہے تو 1 پیالی ہم پانی ڈالیں گے اور اسے آدھے سے پون گھنٹے تک پڑا رہنے دیں گے. وہ پکل ہو جائے گی. دین اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح اسٹرین کرنے کے بعد
उससे फिलिंग भरेंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि आज आपकी हमारी सबकी फेवरेट सना खान जवेरिया सलीम भी हमारे साथ होंगी, और मुझे तो कल की बात लगती है, हमने पहला जब बारान रहमत किया था तो बारान रहमत में जवेरिया आई थी, उस वक्त उनकी मंगनी हुई थी, आज वो एक अपनी छोटी सी बेटी को भी साथ लेके आई हैं। सो टाइम रियली फ्लाइज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई पसंदीदा कलाम जो आप उनकी आवाज़ में सुनना चाहते हो, हमें ज़रूर कॉल करके रिक्वेस्ट कीजिए और बताइए। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल की बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं अली, जो हमारी रेगुलर, जैसे जो लोग स्मोकर्स हैं या जिनको स्मॉल बाइट्स में खाने की आदत है, वो पूरा दिन कुछ ना कुछ चुपते रहते हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए आजकल। आपके पास तो कंसल्टिंग आ रही होगी ऐसे लोगों की। अच्छा सिद्रा, मैं जब काम करता हूँ और मेरा यूजुअली काम एडिक्शन के इर्द गिर्द होता है, तो फूड खाने की जब हम बात करते हैं तो ये दूसरा सबसे अब्यूज सब्सटेंस है इस दुनिया के अंदर। सही है, क्योंकि बेसिकली जो खाने का मकसद है वो बॉडी और ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन हम लोग उसको प्लेजर के लिए यूज करते हैं। सही। ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स को आर्टिफिशियली ऑल्टर करता है। अब होता ये है कि जब ये चीज बंद कर दी जाती है तो ऑब्वियसली हमारा मूड जो हम आर्टिफिशियली खाने के साथ स्टेबल कर रहे होते हैं वो चीज हमको नहीं मिलती। स्मोकिंग तो सेकेंडरी है। अच्छा, आपने वाकई सही बात कही कि आम दिनों में आप देखिए पूरा दिन अगर काम कर रहे हैं, भूख नहीं भी लग रही है, वी हैव स्टार्टेड टू फिल आवर लाइव्स, यानी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, अंडरलाइंग इश्यूज हैं, उसको एक तरह से खुशबतापा हम खाने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चाय देखें, चाय की बहुत कम तलब होती है, बस 4 लोग पी रहे होते हैं तो हम भी बैठ जाते हैं साथ के, चलो भाई 1 कप हमारे लिए भी मंगवा लो। सही है सिद्रा, लेकिन देखिए ये जो रमजान में आप नशरियात कर रही हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि रोजा हमें यही तो सिखाता है। और आप देखिए तमाम इबादत जो हैं उनके टाइमिंग्स बहुत छोटे छोटे से हैं। इवन हज में भी आप एक वक्त में हज मुकम्मल करते कुछ दिनों में, लेकिन ये इबादत ऐसी है जो पूरे महीने चलती है और कंटिन्यूटी में चलती है और एक ही तरह से आपका शब और रोज गुजरता है। तो ये जो अभी बात कर रहे थे आपके एक्सपर्ट, और उसमें डिसेबिलिटी हो जाती है खाने की, मैं समझती हूँ रोजा ही इंसान को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करता है खाने पीने के सिलसिले में। सबसे ज्यादा ये एक अमल है कि हमें ये एहसास होता है कि हम अपने आप को अपना नफ्स मार सकते हैं, हम आराम से रोक सकते हैं। अब चाय की मुझे तो बेहद आदत है, हर थोड़ी देर बाद मुझे चाय चाहिए, लेकिन शाम तक कोई पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो कितनी अजीब और हैरत अंगेज बात है। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी इबादत से नवाजा है कि जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल करके पूरे साल के लिए तैयार कर लेते हैं। तो हमारा तो दिन इतना आसान, इतना खूबसूरत, उसके अंदर हमारे तमाम लोग योगा करते हैं, मैं कहती हूँ नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, ये जो अपनी फूड थेरेपीज होती हैं आपकी रोजे के दौरान, वो सारी फूड थेरेपीज हो जाती हैं। पूरे साल आजकल तो आपा बात की जा रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मैंने कहा भाई नियत कर लो, रोजा ही रख लो। और क्या, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे अरकान है ये हमें बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें ये भी एहसास दिलाते हैं कि गरीब आदमी जिसके जो भूखा होता है वो भूख को किस तरह अपने बर्दाश्त करता है। तो इतनी सारी चीजें इस रोजे से ही हमें पता चल जाती है। लेकिन जो आप अदम बर्दाश्त की बात कर रही थी वो निहायत अहम है आज के मुआशरे में बात करना, कि हम सब में, हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे पास बहुत है, लेकिन जब हम अमल के तौर पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत खत्म हो गई। अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप रोजा नहीं रख सकते, बर्दाश्त नहीं है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बर्दाश्त नहीं है तो आप इंसानों की खिदमत नहीं कर सकते। बर्दाश्त तो एक की पॉइंट है हमारी पर्सनैलिटी का। इसको मजीद भी मैं चाहूंगी कि आप इसकी वजाहत करें कि हमने ना बर्दाश्त की एक नेगेटिव कॉनिटेशन बना ली है। हम समझते हैं कि भाई हमारे मिजाज के खिलाफ ये कोई गलत बात हो रही है, बस हमें उसको बर्दाश्त करना। आपकी विल पावर है बर्दाश्त, लेकिन एहसन तरीके से बर्दाश्त करना और दूसरे को स्पेस देना कि हो सकता है मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करती हूँ, लेकिन ये आपको गलत और मुझे सही नहीं बना देता। ये हमारे यहाँ बहुत इसका फुकदान है, ये लोग नहीं समझ पाते। और इसको विल पावर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। बर्दाश्त का मतलब है विल पावर, और विल पावर तो ऐसी चीज है कि बड़ी से बड़ी बीमारी से आप अपने आप को आजाद कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप अपने आप को निकाल लेते हैं। बिल्कुल। खुशबख्त आपा, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में जवेरिया सलीम हमारी बहुत प्यारी दोस्त, इनको वेलकम करेंगे। क्या हाल है जवेरिया आपके, और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपा। मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि
2019 में जब हमने पहला ये बारान रहमत की ट्रांसमिशन की थी, आप अकेली आई थी और आज आप अपनी नन्ही सी बेटी को भी साथ लेके आई हैं माशाल्लाह से। क्या सुना रही हैं हमें आज जुवेरिया? एक हमदिया कलाम से आगाज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। चूँकि इस पैंडमिक में और तमाम जगह जैसे ट्रैवलिंग बंद है, लेकिन हम सब जो मुसलमान हैं, जब रमज़ान शरीफ आता है तो हमारी सबका जो रुख है वो खाने काबा की तरफ होता है और अल्लाह के दरबार की तरफ जाने के लिए सब बेताब होते हैं। आइए इसको दुआ की सूरत में अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जुवेरिया, आप ये कलाम पढ़ रही थी और हमारी सबकी आंखों के सामने वही मनाजिर थे जिसको अल्लाह ताला ने ये सादत दी है, और यकीनन अब एक ख्वाब जैसा लगता है। और कई आपने जैसा अशार की यहाँ पे बात की कि खाने काबा के गिलाफ को चूम लेना, ये हमारी सबके दिल की आरजू होती है, लेकिन अल्लाह ताला वो वक्त भी लेके आए जब इस वबा से हमारी जान छूटे और वो मनाजिर हम दोबारा देख पाएं, वो रौनकें हम दोबारा एक्सपीरियंस कर पाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान रहमत। टिप्स देंगे लोग। हमारे यहाँ मैं कल भी बात कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजे फर्ज हैं, पकौड़े फर्ज नहीं हैं, लेकिन कई चीजों को हमने लाजम तलवा रही है ना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। वो जो नाजरीन तक तो वो खुशबू नहीं जा रही ना, लेकिन हम तक आ रही है। ये भी आजमाइश है, ये भी आजमाइश है जिससे हम हर दफा गुजरते जी। बर्दाश्त है। कहाँ तक पहुँचे वैसे बताएं तो सही, क्या हो रहा है? बन चुके हैं जी, और पानी में डिप करके उन्हें सेट कर दिया है, असेंबलिंग हो चुकी है, बस दही डालना है। और अब हम पेरी बाइट्स की अच्छा ये छोटा कर रही है। बड़े दही ये दही बड़े बन रहे थे, माश की दाल के पकौड़े बन रहे थे। बड़े हैं। हाँ। तो मुझे सबने कहा कि नहीं, वाई नॉट पकौड़े में उनके साथ छोटे से पकौड़े भी बना के रखूं। क्या देखें, आपने जिसने किया सबक याद उसको ना मिली छुट्टी। आपका काम बढ़ता ही जा रहा है। हमने 2 के बजाय 3 रेसिपीज बनवा ली उनसे आज। लेकिन जी चलते हैं अब जुवेरिया की तरफ। नेक्स्ट कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं जुवेरिया, लेकिन पहले आप अपनी मर्जी का कोई खूबसूरत सा कलाम पेश करें। की डाइट का हिस्सा होते हैं, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में भी माइंडफुल हों। हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आल्सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हिना अनीस ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम और रमजान मुबारक। रमजान मुबारक टू यू एज वेल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है? आज दूसरा रोजा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपको भी रमजान मुबारक। आपका सेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, एज यूजुअल बहुत एनर्जेटिक लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और एनर्जी आपने कहा तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है हमारी टीम में। आज आई वाज ओवर हियरिंग सो मेनी कॉन्वर्सेशंस इन, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में उठे भी, लेकिन हमारा प्री रमजान बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो कल कई लोगों ने ये कहा कि रोजा खोलने के बाद बिल्कुल जीरो एनर्जी थी। हमने तमाम हरबे आजमा लिए, जिसमें होता है कि जी शरबत पी लो तो शुगर रश आएगा, शायद शुगर डाउन हो रही थी। किसी ने कहा चाय पी लो, पूरे दिन से चाय की तलब हो रही होगी। जो स्मोकर्स है उन्होंने यकीनन फौरी तौर पर एक हाथ सिगरेट पिया होगा। लेकिन बट एट द सेम टाइम वी फील के एनर्जी सब लोगों की ड्रेन थी। इस पे क्या कहोगी? देखें सिद्रा, इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने चांद रात को भी देखा, उससे 2-3 दिन पहले भी देखा। मार्केट्स में, सुपर स्टोर्स पे, रोड्स पे रश था। प्री रमजान प्रेपरेशंस हो रही थी जी। लोग ग्रोसरीज ले रहे, किचन को भर रहे हैं। 2 प्रेपरेशन किसी ने भी नहीं की। एक अपने माइंड को ट्रैक नहीं किया, दूसरा अपने सोल को ट्रैक नहीं किया। ये दोनों प्रेपरेशन सब भूल गए। तो कल का रोजा इफ्तार के बाद सबका गड़बड़ हो गया। माइंड प्रेप अगर करते तो ये सोचते कि पूरा जो हमने इफ्तार के बाद जो अपने जो भी खाना पीना है उसको किस तरीके से सेट करना है, हमारा डाइट रूटीन क्या होना चाहिए, जो आपकी मेरी आदतें हैं, ऑब्वियसली शुगर का क्रश किस तरह होना है, हमें क्या खाना है। लास्ट रमजान हमने जो गलतियां करी थी इस रमजान नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली शरबत नहीं लेना, हेल्दी जूसेस किस तरह होने, हेल्दी ग्रोसरी क्या लेकर आनी है। हमने जो आर्टिफिशियल शुगर के और जिस तरह से रिफाइंड शुगर के शरबत नहीं लेने।
कुछ हेल्दी चीजें ले लेते तो इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर पे इतना रश ना बढ़ता। सही। तो ये हो गया माइंड ट्रैक। सोल को किस तरह से ट्रैक करते कि हमने घरों को साफ कर लेना था, नमाज की तैयारियां कर लेनी थी, कुछ इबादत के बारे में सोच लेते, घरों के अंदर रहते तो रोडों पे रश ना होता। सही। तो ये 2 प्रिपरेशन कर लेते। अच्छा, वैसे तो मैंने ये कल देखा प्रॉब्लम ना बड़ी होती। क्यूट चीजें, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हैशटैग रमदान को जरूर फॉलो करें। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि पूरी दुनिया से बड़ी क्यूट वीडियोस उसमें आ रही हैं। खास तौर पे जब छोटे छोटी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और पूरी फैमिली बाजमात नमाज अदा कर रही है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। खुशबत आपा, मैं एक सवाल आपके लिए ऑफलाइन आया हुआ था, मैंने कहा जरूर उसको ऑन एयर करूं मैं, कि आपने क्या मीडिया से दानिस्ता तौर पे दूरी बनाई हुई है? क्योंकि हम आपको कम देखते हैं बहुत सारे समाजी इश्यूज पे बात करते हुए भी, अपीयरेंसेस कम देखते हुए भी। ये एक्टिविज्म आपने खुद कम किया है या किसी और चीज में मसरूफ है? देखिए, मसरूफियत तो जाहिर है वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है और आपके ट्रैक्स को चेंज भी होना चाहिए। सही। एक ही एक काम कब तक चलता है? और जब आप उस काम में किसी एक लेवल पे आते हैं तो उससे कुछ और रास्ते भी निकलते हैं। तो मेरे जो जिंदगी में रास्ते आते हैं मैं उस पर फिर सिंसियरिटी से काम करती हूँ। तो कुछ अरसे के लिए फिर दूसरी चीज में छोड़ देती हूँ। लेकिन जहाँ तक आप मीडिया की बात करें, देखिए मीडिया पे भी आने का हमारा एक तर्ज है, हमारा एक अंदाज है। अगर उस तौर से मैं आऊं तो मैं खुशी से और मैं जरूर आऊं, लेकिन बिला वजह आने का तो कोई जवाब भी नहीं बनता। और आजकल के जो मामलात हैं उसमें मैं समझती हूँ शायद कहीं कहीं हम मिसफिट नजर आते हैं अपने आप को खुद। अभी जो आपने बात की, मैं इनके बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगी कि बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि आपको तैयारी करना चाहिए और खाने से ज्यादा अपने सोल की तैयारी। मैं समझती हूँ हमारी जो 98% आबादी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, हमारे पास लोगों के पास तो रोजा अफ्तारने की भी इस वक्त कोई सवाल नहीं है, खाने का भी सवाल नहीं है। उनकी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ी हुई है। उनके पास तो है नहीं कि वो अफ्तारी या सहरी के लिए कोई तैयारी कर सके। इस वक्त जरूरत इस बात की कि जो लोग मुखय्यर हैं, जिनके पास कुछ है, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, ब्लेसिंग है उनके पास, वो उन लोगों के लिए काम करें। उन लोगों के लिए जितना कर सकते हैं। ये महीना होता भी इसीलिए बल्कि इस बात कि को आपके सोल की तैयारी ही ये है कि आप दूसरे को दें। मैं खाऊंगी तो ये मैं अपने जिस्म के लिए खा रही हूँ ना, लेकिन जब मैं किसी को दे दूंगी तो मैं अपनी रूह को मजबूत कर दूंगी। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निजाम बनाया ना कि पूरा साल जिनके पास जिनको नहीं नवाजा हुआ है या जिनकी इतनी हैसियत नहीं है, वो अपनी भूख जब छुपाते हैं, तो अब हम और आप जब रोजा रख रहे हैं हमें वो एहसास से गुजार रहा है अल्लाह ताला कि वो जब भूख लगती है तो कैसा महसूस आप और सबसे बड़ी बात ये कि आपको सोल अगर अपनी मजबूत करना है तो करना क्या है? करना ये है कि अगर आप अपने लिए खा रहे हैं तो दूसरे को भी खिला दें। आपके सोल मजबूत होती है, उसको ग़िज़ा मिल जाती है। आप अच्छा पहन रहे हैं, आप किसी और को भी पहना दें तो आपकी रूह इस तरह मजबूत होती चल जाती है। वरना एक ताकतवर जिस्म के अंदर एक बहुत कमजोर और बीमार रूह, आप सोचिए कितना अदम तवाज़ुन अच्छा, कल है। किसी ने बड़ा अच्छा मुझे एक फॉरवर्ड भेजा एंड आई रियली वांटेड, आपकी बात से मुझे वो याद भी आ गया कि एक बड़ा इंसान वही होता है जिसका दिल छोटा नहीं हो सकता। हम अक्सर जो ना कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत सारा मालो ज़र आ जाए, लेकिन दिल के हम बहुत गरीब होते हैं। तो दिल बड़ा कीजिए जी। और खास तौर पे आज इन मैसेजेस में थोड़ी सी रद्दोबदल सिर्फ ये है कि कोविड की जो पाबंदियां हैं, जो SOPs हैं, उनका भी ख्याल रखते हुए आपका बिल्कुल दिल चाहता होगा कि आप लोगों के लिए इफ्तार लेके जाएं, लेकिन अगर उस इफ्तार के सिलसिले में आपने समाजी फासलों को बरकरार नहीं रखा और आपकी ये रहमत या आपका ये जेस्चर दूसरे के लिए ज़हमत बन गया, तो ये भी मेरे ख्याल में इससे आपको गुरेज करना है। हिना, वेरी क्विकली, एनी टिप्स फॉर पीपल जो खास तौर पे ये कह रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत आज हम दोबारा महसूस कर रहे हैं, इसके लिए फौरी तौर पे लोग शुगरी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखें, बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि देखें, शुगर को और ये जो शुगरी ड्रिंक है इसको अपना सहारा ना बनाएं। आप जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको आप चिल्ड कर दें, आइस में रख दें और उसके जो जूसेस हैं उसके स्मूदीज बना के आप उनको पानी के साथ उसको थोड़ा सा लिक्विडाइज कर दें और उसको इफ्तार में लें और फ्रीक्वेंट पूरा दिन इफ्तार से लेकर सहरी तक उनको यूज करें। तो देखिए, जितनी बॉडी हाइड्रेशन मोड में आपकी चली जाएगी तो आपको प्यास की शिद्दत लगेगी ही नहीं नेक्स्ट डे, क्योंकि एक 70% आपकी बॉडी का जो बना हुआ है वो पानी से बना हुआ है। जब वो फिल हो जाएगा दोबारा तो प्यास नहीं लगेगी। बिल्कुल, तो या तो दूध या दही के जरिए उसको स्मूदी बना लें, शेक बना
بنا لیں, نہیں تو سلرپی یا سلش بنا لیں صرف کرشڈ آئس اینڈ واٹر کے ساتھ, جو آپ کو پسند ہو. اور سیکنڈ یہ کہ پروٹین بہت زیادہ نہ لیں سحری میں. ہاں, آپ کے اور مرغی کے بیچ میں کچھ فاصلہ برقرار رکھیں. وہاں سے سماجی دوری وہاں پہ بنائے رکھیں. مہنگائی ہو گئی ہے. Absolutely. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. خوشبخت آپ آئیں, ہم بہت خوشی ہوئی اینڈ ڈیفینیٹلی وی لرنڈ a lot from you as well. اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری رہنمائی کے لیے, خصوصاً کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عدم برداشت. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت.